Dear students, I hope you all have watched the previous video carefully, okay, and the things are more clear to you now. In this video here now, we are going to discuss about the cell organelles. जो various cell organelles present हैं cell में, उनके function क्या क्या हैं? We will discuss here about the cell organelles, their functions. Okay, first. Cell organelles nucleus, although we have discussed earlier. Let us just take a throwback of this nucleus again. Discovered by Robert Brown. It was discovered by Robert Brown. Okay. Nucleus कहाँ present होगा? It is present in the periphery in the plant cell. Periphery क्या है? Means sides में. Okay. Or in animal cell it will be present in center of the cell. In animal cell it will present in center of the cell. Clear? Nucleus में क्या है? Nuclear membrane is there. Why membrane is there? So that it can select the materials which should come in, which should go out. जो selection होगा materials का वो कौन करेगा? Nuclear membrane. इसके अंदर क्या है? पोर्स, जिसके कारण जो मटेरियल सेलेक्ट हुए वो अंदर आ सके और बाहर जा सके. क्लियर? अब न्यूक्लियस में क्या है? देयर इज अ डेंस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म. क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट. और इसमें क्या प्रेजेंट है? Chromosomes. Okay, chromosomes are there, which are the thread-like structures present in the nucleus. Thread-like structures हैं जिनमें क्या present होते हैं? Genes. What are their genes? Okay, एक small dense body भी present है, that is nucleolus. Nucleolus is also present in the nucleus, which is small dense round body. Okay, which is not visible during the cell division. Clear? जो visible नहीं होगी किसके कारण? Cell division के टाइम पे. Next, it is the first cell organelle which we have discussed here. Next one which we will discuss now, that is mitochondria. We will discuss here the mitochondria. Okay, it is the second one. Mitochondria is known as what? It is known as powerhouse of the cell. It is known as powerhouse of the cell. Clear? Why it is called as powerhouse of the cell? Why? Because जो भी सेल की रिक्वायरमेंट है, जो भी सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो सेल को कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया. नाम क्या है? पावर हाउस. इट विल गिव एनर्जी टू द सेल, जो भी उसकी फंक्शनिंग है. ओके, These are the sites for respiration. Clear? जहां पे जितनी नीड होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके अकॉर्डिंग इसका नंबर होता है. लाइक मसल सेल्स दे नीड मोर एनर्जी, तो मसल सेल्स में ये प्रेजेंट होंगे ज्यादा कंपैरेटिवली अदर सेल्स. ओके, तो एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज हुई? एटीपी की फॉर्म में. एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, जिसका मीनिंग क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. द मीनिंग इज, द फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और एटीपी किसी सेल का क्या है? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. क्लियर? इसकी टू मेम्ब्रेन है. देयर आर हैविंग टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. Inner membrane is deeply folded. This membrane is deeply folded comparatively outer membrane. इसमें folds ज़्यादा हैं outer membrane के comparatively. Okay. Next one we have discussed two cell organelles. Let us come to the next. Third one we will discuss here, Golgi apparatus. Golgi apparatus. Okay,
Golgi apparatus. It was discovered by Camillo Golgi. Discovered by Camillo Golgi. अब Golgi apparatus क्या है? These are the stacks of tubes. Means tubes का और किसी भी form का we can say it is a group. Stacks. Clear? जो कि membrane bound organelles है. These are the membrane bound organelles. Stacks of the we can say tubes. Okay. इसका function क्या है? जो भी सेल में पैकिंग होगी, पैकिंग, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, ओके, किसकी? जो भी सेल में कंटेंट्स की फॉर्मेशन हुई, जो प्रोडक्ट सेल में बने हैं, ओके, उनको पैक करना, उनमें कोई कमी है तो उनको मॉडिफाई करना और उनको अपने अंदर स्टोर रखना. क्लियर? क्या फंक्शन है? पैकिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, स्टोरेज करना. और जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर विल change into simple sugar, into simple sugar. और इसका फंक्शन क्या है? मेनली involved in the formation of lysosomes also. Involved in the formation of lysosomes. Clear? Don't worry, we will discuss about the lysosomes also. Don't think कि मैंने क्या लिख दिया. We will discuss about the lysosomes also. Okay. So we have discussed here 3 cell organelles: nucleus. What was the second one? Mitochondria. And third one is Golgi apparatus. Today we have discussed 3 cell organelles here. We are going to discuss one more. Okay. Fourth one we will discuss here, that is lysosomes. Lysosomes. अब ये देखिए, जो भी सेल में वेस्ट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है, जो भी सेल में वेस्ट बना है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओके, वेस्ट प्रोडक्ट बना किसके कारण? जो भी सेल में एक्टिविटीज हुई, उन एक्टिविटीज के कारण जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बने, ओके, उनको सेल से रिमूव करना. टू रिमूव दीज फ्रॉम द सेल. ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्लीनिंग सिस्टम ऑफ द सेल. क्या बोलेंगे इसको? क्लीनिंग सिस्टम ऑफ द सेल. ओके, और अदर नेम इज यू कैन से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. वेस्ट डिस्पोजल, जो भी सेल में वेस्ट प्रोडक्ट बना, उनकी एक्टिविटीज के कारण, जो भी डेली एक्टिविटीज होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो इट इज देयर, कि डेली एक्टिविटीज के कारण जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव देम. इफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट इज नॉट टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, व्हाट विल हैपन? वी विल गेट मेनी डिजीज. इफ डिजीज विल बी देयर, वी विल नॉट फील वेल. ओके, सो उनको निकालना जरूरी है सेल से. अब समटाइम्स इट इज देयर कि जो सेल में डिस्टर्बेंस है, कई बार सेल में डिस्टर्बेंस हो जाती है. ओके, तो जो सेल में डिस्टर्बेंस हुई, ओके, तो जो इसमें एंजाइम फॉर्मेशन हुई, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर देयर, दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स. ये अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं. एंजाइम इज देयर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम. हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन. वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन करना, सो दैट दीज कैन बी डाइजेस्टेड इजिली, वो इजिली डाइजेस्ट हो सके. ओके, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स. सुसाइडल बैग्स बिकॉज दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स. अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करने के कारण इनको क्या नाम दिया गया? सुसाइडल बैग्स. सो here today we have discussed 4 cell organelles: nucleus, mitochondria,
Third one was Golgi apparatus, and fourth is lysosomes. I request you all to go through once about all these. Okay. If any doubt is there, you may ask in the comment section. Thank you everyone.